हो गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स ऑफ छत्तीसगढ़. So we won't go with the legislative process which happened for this creation of new Chhattisgarh. We will do that in history, है ना. We are dealing at present with geography of Chhattisgarh. तो मैं उसको skip कर रहा हूँ, वो वहाँ पढ़ेंगे, है ना, कि रविंद्र चौबे आए अनऑफिशियल बिल लेकर गए MP असेंबली में, तो वो सब बाद में, अभी नहीं. We are starting with geography, so we will focus. हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले रहे हैं. विल फोकस ओनली ऑन ज्योग्राफी. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स ऑफ छत्तीसगढ़. 1854 नागपुर was annexed under the doctrine of lapse by the then Governor General of India, Lord Dalhousie. Lord Dalhousie was the then Governor General of India at that time. Since in 1948, Lord Dalhousie, the Governor General of India, the then Governor General of India, he started a policy popularly known as doctrine of lapse. Under this policy, Britishers actually they annexed those regions in India of the kings or the rulers who were not having legal successors. Legal successors means the successors by blood. खून से अगर कोई राजा का बेटा होगा, अगर उसका बेटा नहीं हुआ तो कोई उसका सक्सेसर नहीं हुआ, तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ऐसे सारे रीजन्स को एनेक्स कर लेंगे, हड़प लेंगे. ठीक है. सो अंडर दिस पॉलिसी इन 1854 ब्रिटिशर्स दे एनेक्स्ड नागपुर एंड दिस छत्तीसगढ़ रीजन विच इज going to be the future state in 2000 was the part of Nagpur only. Then 1861. So when we are talking about that time, means before India's independence, this India was divided into provinces not unlike states right now we have. अभी इंडिया कैसा है? India is divided into states is further divided into divisions is further divided into districts is further divided into तहसील्स. ये है अभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऐसे होते हैं अभी, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था. इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स. इंडिया में क्या क्या थे? ब्रिटिश ऑक्यूपाई, जिन रीजन्स को ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, दोज रीजन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, they were called British provinces and there were also princely states. Independent regions ruled by rulers, small kings, रियासतदास, ये princely states कहेंगे. ठीक है. So in 1861 Britishers they established one new province called Central Provinces. इन्होंने establish किया and the capital Nagpur was made the capital of Central Provinces. Okay. उस समय Central Provinces था. After India's independence, states were reorganized in the country. तो आज के the present day regions were actually the part of Central Provinces in 1861. ये क्वेश्चन बन गया. So the present day Madhya Pradesh, present day Chhattisgarh and some portions of Maharashtra, they were included in the Central Provinces when it was created in 1861. ठीक है. और ये लाइट फैक्ट है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सागर, निर्बुड्डा एंड नागपुर they were merged to form Central Province. ठीक है. आई खाली बीच में कैसे हो गया? Then after 1862 में क्या हुआ? Central Province, which was established in 1861, actually it had 5 provinces. This Chhattisgarh region, this present day Chhattisgarh state, means this region at that time was made a division out of 5 provinces of Central Provinces, and the headquarter was Raipur. They made Raipur as the headquarter of this division. In other words, we may call it Raipur was made a division in the year 1862. And with this division, Raipur division was made, and with this Raipur division, 3 districts were created. क्या क्या? Raipur, Bilaspur and Sambalpur.
और ये भी कह सकते हो कि रायपुर डिवीजन इंक्लूडेड 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन 1862. What were those districts? Which were रायपुर, बिलासपुर. जैसे आज दुर्ग डिवीजन है, उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है दुर्ग, वैसे ही समझ जाओ कि उस समय रायपुर डिवीजन में रायपुर इटसेल्फ वाज अ डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विद बिलासपुर एंड संबलपुर. तो ये क्लियरिटी के लिए लिख दिया है कि आपको ये पता रहे कि डिवीजन जो होता है डिस्ट्रिक्ट से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो. सो you don't be confused. So for this reason I have clearly indicated these 2 lines. 1861 became a district. Raipur पहले डिस्ट्रिक्ट बना, उसके बाद in the very next year in 1862 Raipur became a division. 16th of October 1905. This is one of the landmarks in Indian history. What happened? The then Viceroy, है ना, in different periods actually the administration in India by the Britishers they were carried by some officials और उनके पोस्ट अलग अलग थे. तो पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर he was the designation of that post got changed to Governor General of Bengal. Then in future this designation also was changed to Governor General of India. Then in 1858 Governor General of India, this post became Viceroy of India. तो now 16th of October 1905 की बात कर रहे हैं, मतलब इस समय कौन है? Viceroy है. And who was the Viceroy? Lord Curzon. So Lord Curzon by Bengal province was divided or bifurcated by Lord Curzon in 2 parts. And when we are talking about Bengal province, देन बंगाल प्रोविंस बहुत बड़ा था, ठीक है. बंगाल स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट बंगाल प्रोविंस. सर जो सेंट्रल प्रोविंस जो बना था उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट तो था ही नहीं उसमें. देखो सेंट्रल प्रोविंस में मैं ये नहीं बोल रहा केवल 3 ही डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट्स और बने होंगे, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. हम ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल प्रोविंस में देखो छत्तीसगढ़ वॉज द पार्ट ऑफ नागपुर एंड in 1861 with the establishment of central province this portion of Maharashtra, that is Nagpur, Madhya Pradesh and CG, they were included in central province. It means now by 1861 this region Chhattisgarh became a part of central province. तो इस रीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट बने उस पर फोकस कर रहे हैं हम. जो हाँ 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 जब 62 हुआ तो सिर्फ ये क्या डिवीजन सिर्फ हुआ तो सिर्फ रायपुर, सिर्फ इस रीजन में केवल एक डिवीजन बना रायपुर, और ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे ये उसके अंदर हो गए, ऐसा हुआ. ठीक है. थोड़ा इसको देख लो. बंगाल प्रोविंस की बात कर रहे हैं, 1911 की बात कर रहे हैं, तो इसने क्या किया, कलर चेंज कर दिया. ठीक है. तो ये दिस वाज बंगाल प्रोविंस इन बिफोर 1905. ठीक है. ये बंगाल प्रोविंस था पूरा. बंगाल प्रोविंस इतना बड़ा था कि आप देखो कि आज का प्रेजेंट डे का बिहार भी यहाँ है, प्रेजेंट डे का झारखंड भी यहाँ है, वेस्ट बंगाल तो है ही है, वेस्ट बंगाल है ही है, एंड सम पोर्शन ऑफ छत्तीसगढ़. मतलब छत्तीसगढ़ बोल लो क्योंकि उस समय इससे पहले इस रीजन में ही संबलपुर बना था सेंट्रल प्रोविंस में. ये छोड़ लो. ठीक है. अब इधर देखो, यहाँ पर 1905 में ये बंगाल डिवाइड कर दिया गया 2 हिस्सों में. दिस बिकेम East Bengal province, this became East Bengal province, and this is West Bengal province, not West Bengal state, West Bengal province. और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रेजेंट बांग्लादेश चला गया. प्रेजेंट बांग्लादेश और असम बोलो तो आज सब कुछ शामिल है उसमें. अरुणाचल प्रदेश और ये सब हिस्से भी उस समय असम में थे, है ना. ये तो आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए तो ये स्टेट्स बने बाइफरकेट होके.
वरना उस समय की जब असम की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा असम है, वहाँ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब असम में शामिल है, ठीक है। ये बंगाल प्रोविंस था। तो लॉर्ड कर्जन on 16th of October 1905 finally announcement of Curzon came into existence, came into reality, and Bengal province was divided into two provinces. वो हो गया, ये हो गया. Now Britishers, they gave an explanation. We are doing this partition of Bengal province just for administrative convenience, as this region is very large for us to carry out our administration is smooth way, so we are dividing it. But actually many historians, they told what was the real cause for this. Actually this region was dominated by Muslim population, and this region was dominated by Hindu population, and this is a popular notion, and also we know the reality. Britishers, they had this policy of divide and rule, है ना, वो डिवाइड करना चाहते थे, बिकॉज एक तो ये रीज़न था कि हिंदू मुस्लिम को वो डिवाइड करना चाहते थे, एंड वन मोर रीज़न वाज कि दिस बंगाल एक्चुअली वाज द सेंटर ऑफ रेवोल्यूशंस, है ना, प्री इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्यों? यहाँ के लोग ऐसे कंपैरिजन में देख लो तो इंडिया के किसी भी पोर्शंस में यहाँ के लोगों की इंग्लिश की नॉलेज अच्छी थी, इंग्लिश की नॉलेज अच्छी थी। जब ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन शुरू भी किया, मतलब आपने देखा होगा कि वेस्टर्न आपका वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के साथ साथ यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इंक्लूड किया इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ स्कूलिंग, एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सिस्टम। तो जब ये हुआ तो दिस प्रोविंस, ये पीपल हियर इन दिस प्रोविंस, दे वर मोर इंगेज्ड इन हैविंग एजुकेशन इन English language. So this is the reason why the English of Bengalis, English of Bengalis is very good as compared to rest of the part of India. अब इंग्लिश आ गई इनको तो एक गलती हो गई, इन्होंने ही इंग्लिश सिखाया, इससे पहले तो इंग्लिश था नहीं। इन्होंने ही एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश लेके आए 1854, अगर आपको याद होगा, लॉर्ड मैकाले, नहीं 1854 नहीं, 1834 वो 1854 में तो मकाले वो सिविल सर्विसेज के लिए बनाया गया था, ठीक। 1854 में मकाले बनाया गया था कमेटी ना, मकाले कमेटी पहली बार 1854 में बनी थी फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। 1854 की बात कर रहा हूँ मैं, मैकाले मिनट 1834 की बात कर रहा है, तो इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। हिस्ट्री में मत जाओ, अभी मैं यहाँ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस, ठीक है। मकाले मिनट वो भी वही है, मकाले है ना, हाँ। तो इंग्लिश फिर दे बिकेम वेल वर्स इन इंग्लिश। अब इंग्लिश आ गई तो इंग्लिश लिटरेचर्स पढ़ने लगे, अन्य देशों की इंग्लिश लिटरेचर्स पढ़ने लगे। तो इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, है ना, इन्होंने कभी अमेरिका में जो रेवोल्यूशन हुआ वो पढ़ा होगा, इन्होंने कभी रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। तो इससे इंस्पायर होगा, उन्होंने बताया कि वहाँ कैसे अंग्रेज़ों ने इनके हिस्से मतलब यहाँ कैप्चर किए, तो कैसे कैसे वहाँ रेवोल्यूशन हुआ, हाउ दे गॉट इंडिपेंडेंस। तो जाहिर सी बात है ये लोग भी एनलाइटमेंट इनके अंदर भी आया होगा, हम भी अंग्रेज़ों से छुटकारा पाएंगे। तो ये दिस बंगाल प्रोविंस एक्चुअली बिकेम द सेंटर ऑफ रेवोल्यूशंस इन इंडिया। आप देखते हैं कि व्हाट हैपन इन 1857 रिवोल्ट, है ना, द फर्स्ट रिवोल्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस बाय मंगल पांडे हीरो। असल में वो भी कहाँ के थे, वो भी तो ब्रिटिशर्स के बंगाल रेजिमेंट के ही थे। उस समय वो लोग मीरठ में पोस्टेड थे, लेकिन वो भी था यहाँ का। तो ये सेंटर बन गया था, तो ये भी उनको खतरा लगता था, इसलिए भी उन्होंने डिवाइड कर दिया कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड ये एरिया अलग हो जाएगा, ये एरिया अलग हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो वो जो रेवोल्यूशन, वो जो फायर यहाँ खड़ा हो रहा है उसे दबाया जा सके, ठीक है। हाउएवर दिस बंगाल पार्टीशन वाज रिवोक्ड बाय अनदर वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज इन 1911, लेकिन 6 साल तक तो रहा। एंड दिस इज द रीज़न, बहुत प्रोटेस्ट हुए इंडिया में जब कर्जन ने बंगाल पार्टीशन किया। एंड सो फॉर दिस रीज़न 16th of October 1905 इज मार्क्ड एज नेशनल मोर्निंग डे। कल याद नहीं आ रहा था ना, मोर्निंग जानते हो ना, मोर्निंग शोक दिवस, मौन करना, तो शोक दिवस है। और एक और चीज़,
रक्षाबंधन डे भी ऑब्जर्व किया गया था उस समय, हिस्ट्री में पढ़ोगे तो रक्षाबंधन डे यहाँ इंडिया में, है ना। हाँ, तो ये समझ गए। हालांकि ये बाद में ये जो बाइफर्केशन था इसे रिवोक कर दिया, फिर से बंगाल प्रोविंस एक हो गया। और आगे चलकर देखेंगे 1911 में ऐसा हुआ, रिवोक्ड हो गया वो, लेकिन 1912 में और 1936 में, 1912 में ओडिशा, इसी बंगाल से ओडिशा रीजन निकाल के, ओडिशा भी है ना यहाँ ओडिशा भी है, ओडिशा भी है, ओडिशा रीजन भी है, इसी बंगाल प्रोविंस से अलग करके एक ओडिशा प्रोविंस आ गया। It came into existence, Odisha province, and in 1936 then Bihar province also evolved out this Bengal province only. धीरे धीरे करके प्रोविंस बढ़े, और आप देखोगे कि till India's independence almost this India comprised of 11 British provinces and 4 chief commissionaries। वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस हो गए थे। उसमें से एक बिहार भी बन चुका है, ओडिशा भी बन चुका है, असम भी बन चुका है, ऐसे बहुत सारे प्रोविंसेस से। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। हाँ, नहीं 19 पहले उड़ीसा निकला है, बिहार बाद में निकला है। हाँ, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। पहले उड़ीसा प्रोविंस बना है 1912 में, 1936 में। अरे रुको यार, यहाँ लिखा भी होगा ना, मैंने लिखा है। हाँ रुक जाओ, उल्टा फॉर्मेशन ऑफ बिहार, पहले बिहार और 1936 में ओडिशा प्रोविंस। ठीक है, मुझे डाउट हो गया था तभी मैं वापस आया यहाँ। ये समझ गए, ये हुआ। और वेस्ट बंगाल प्रोविंस जब डिवाइड हुआ था तो प्रेजेंट डे का बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा became the part of West Bengal province. East Bengal province comprises of Bangladesh and present day Assam. आगे चलते हैं तो ये देखिए, the central provinces were reorganized with the partition of Bengal. Now what happened with the partition of Bengal? ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसका रिलेशन है छत्तीसगढ़ से। When Bengal partition was done in 1905, this central province which already existed here is since 1861, पहले से था ये। तो सेंट्रल प्रोविंस वॉज रीऑर्गेनाइज्ड, बंगाल पार्टीशन के साथ ये रीऑर्गेनाइज हुआ। कैसे रीऑर्गेनाइज हुआ कि सोचो कि ये सेंट्रल प्रोविंस है और इससे लगा हुआ ये बंगाल प्रोविंस है, ये सेंट्रल प्रोविंस, ये बंगाल प्रोविंस। ठीक, अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक रीजन था संबलपुर, एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका था ना, सेंट्रल प्रोविंस में एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका था। क्या फ़ायदा है, कलर बदलता ही नहीं। एक ये बन चुका था, ये क्या है, संबलपुर। और बंगाल प्रोविंस में इधर 5 रीजन्स थे, इस पोर्शन में 5 रीजन्स थे, ये कोरिया, चांगबखार, सरगुजा, उदयपुर एंड जशपुर, ये 5 रीजन्स वहाँ थे। तो सेंट्रल प्रोविंस को रीऑर्गेनाइज किया गया। संबलपुर विच वॉज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस वॉज ट्रांसफर्ड टू बंगाल प्रोविंस, and 5 regions of Bengal province, that is Korea, Changbakhar, Sarguja, Udaipur and Jashpur, they were transferred to central province. सेंट्रल प्रोविंस को ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब उन प्रोविंसेस की जो बाउंड्री लाइन्स थी उसको फिर से रिऑर्गेनाइज किया गया। तो ये याद रखना है कि विद बंगाल पार्टीशन what changes happened here, Sambalpur, which was the district here of Raipur division, got transferred to Bengal province, and 5 regions, what were those 5 regions? अभी प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, कोरिया, सरगुजा, जशपुर। ऐसे क्लाइंट खींचना ऊपर नॉर्थ में, तो कोरिया, सरगुजा, जशपुर प्लस उदयपुर, चांगबखार एंड उदयपुर। चांगबखार अभी एट प्रेजेंट कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कोरिया। वैसे अब वो कोरिया में नहीं जाएगा। अगर आपको जब ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी ये डिस्ट्रिक्ट बन गया है ना, तो अगर आपसे पूछेगा कि आप चांगबखार कहाँ जाएगा, तो अब बोलोगे आप मनेंद्रगढ़ में चला जाएगा। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर इसमें चला जाएगा, और उदयपुर आज भी सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपन बोल तो लेते हैं चांगबखार, कोरिया, लेकिन अगर प्रिसाइजली आ गया वहाँ पर, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में एट प्रेजेंट होगा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, ये आ गए सेंट्रल प्रोविंसेस में, विच दीज 5 रीजन्स है ना, ये क्या हो जाएंगे, दे
दे विल बी अ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट लेटर ऑन। बाद में ये छत्तीसगढ़ स्टेट बनेगा, डिस्ट्रिक्ट हैं ये, है ना। और ये संबलपुर विच वॉज ट्रांसफर टू बंगाल प्रोविंस लेटर ऑन बिकेम द पार्ट ऑफ ओडिशा स्टेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो ये देख चुके हो डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़। अब आते हैं मेन उस पे। तो दो डिस्ट्रिक्ट तो अब तक आप जान चुके हो। 1861, in 1861 two districts were established, Raipur and Bilaspur. Then 1905 Bengal partition हो गया। Immediate after Bengal partition, in the very next year 1906, one more district was established, that is Durg, and Durg was formed out of Raipur district. तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं कि द पेरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दुर्ग इज रायपुर डिस्ट्रिक्ट। रायपुर डिस्ट्रिक्ट है, एक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। संबलपुर तो गया, अब उसको हमको पढ़ना नहीं, वो उड़ीसा में चला गया। तो हमारे यहाँ पर अभी दो डिस्ट्रिक्ट हो गए, रायपुर और बिलासपुर। बिलासपुर ऊपर वाला, रायपुर नीचे वाला। इस रायपुर डिस्ट्रिक्ट से बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ से सदर्न पार्ट काटे और इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया दुर्ग 1906 में। यहाँ तक हो गया कार्व्ड आउट ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट। देन यहाँ से अब हम बीच में चलते हैं, वो वहाँ था कि नहीं 1936? यहाँ नहीं था? ये वाला ये गायब हो गया क्या ये 1936 वाला? अरे नहीं यार, कहाँ आया था 1936? ये वाला नहीं, ये नहीं, वो वाला वो स्लाइड ही गायब। चलो मैं बता देता हूँ। ओके, अब 1906 में दुर्ग स्टैब्लिश हो गया एज अ डिस्ट्रिक्ट। नाउ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट दिस रीजन इज हैविंग? 3। रायपुर बिलासपुर इन 1861 एंड दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन 1906। ठीक है, इसी बीच में यहाँ इन द ईयर 1936, ये आपको ज़्यादा लेना है ना। सोर्सेस में हमें मिलता है कि एक्चुअली द क्रिएशन ऑफ और द मर्जर ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस विद Berar region was announced in 1903 only, but in actually it came into existence in 1936। ऐसा कैसे हो सकता है? 33 साल बाद अनाउंसमेंट उस समय होगा, 33 साल बाद ऑन पेपर आएगा, तो कुछ तो गड़बड़ी है। लेकिन फिर भी लिंक जोड़ने के लिए हम एक प्रेफरेंस मान लेते हैं 1936। What happened in 1936? बेरार रीजन, हाँ यस, मैं बताता हूँ आपको। कहाँ है? सर वो एक स्लाइड शायद गायब है। ये इसी में है सर। सर व्हाइट वाले में ब्लैक कैंसिल हो रहा है। अरे क्या बताएं, लो चलो मैं बता देता हूँ, मुझे पता है, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ से। हाँ आए चलो इधर मैं बता देता हूँ। ठीक है, वो मैप जो इसमें था इसमें नहीं है। सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, इंग्लिश में एसेंट ही बदल जाता है। हिंदी में अपन कैसे बोले बरार है, हिंदी में बेरार, ब्रार, इंग्लिश में बताओ। हाँ ब्रार, हमारा भी है। लॉर्ड राम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लॉर्ड रामा। ये देखो, ये सेंट्रल, ये पहले ये एक सेंट्रल प्रोविंस बना ये। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस बहुत बड़ा था। यहाँ पर ये साउथ में कुछ रीजन्स थे, साउथ में कुछ रीजन्स थे। देखो ये दिख रहा है, ये बाद में जुड़ा इन 1936।
Berar, actually these were the regions ruled by Nizams of Hyderabad. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं when we are talking about 1936, तो the Nizams of Hyderabad they have already given these districts of Berar to the Britishers in लीज में दे रखा था उनको. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, in 1936 उन्होंने merging Berar with the central province, a new province was established, central provinces and Berar. So what happened in 1936? छत्तीसगढ़ तो अभी since 1861 छत्तीसगढ़ became part of central province. तो आप क्या बोलेंगे, since 1936 छत्तीसगढ़ became part of central provinces and Berar. ठीक है. अच्छा, मध्य भारत वाला कंसेप्ट फॉलो मत करना, वहाँ पे मिस्टेक है. मध्य भारत था जरूर, लेकिन वहाँ पर छत्तीसगढ़ उसका पार्ट नहीं बनेगा, वो एक जगह लिखा हुआ गलत है वो. ठीक है, नहीं बनेगा वो. अब ये हुआ 1936. तो 1936 में अब ये जो छत्तीसगढ़ रीजन है किसका पार्ट हो गया, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, ये हो गया. और यहाँ से लेकर ये छत्तीसगढ़ कब तक सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार का हिस्सा रहेगा, देख लो. 1st of November 1956 when states in India will be reorganized and Madhya Pradesh state will be created. हाँ, वो नहीं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. चलो, ये हो गया. इस बीच में ये हुआ अभी टिल फिर 15th of August 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. ये तो आप सबको पता है. नाउ व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, दिस रीजन, दिस छत्तीसगढ़, फ्यूचर छत्तीसगढ़ स्टेट रीजन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स दिस रीजन हैड? तीन ही थे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, है ना. एंड टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, दिस छत्तीसगढ़ रीजन वॉज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार. 1936 में हो गया था. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब यहाँ देखो कि एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इस रीजन की पोजीशन क्या थी. छत्तीसगढ़ रीजन इट हैड 3 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 14 प्रिंसली स्टेट्स, है ना. अभी भी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी यहाँ पर, अभी इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया, उसके बाद भी यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 14 प्रिंसली स्टेट्स हैं. All over India, how many princely states India was having? Around 565. Out of 565 provinces, 13 provinces they already went to Pakistan. पाकिस्तान में चले गए, तो कितना बच गया? 552. Amongst 552 princely states or riyasats in India, how many riyasats this particular region was having? 14 रियासत. ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता है. अब तक 3 ही डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं इस रीजन में, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग. रायपुर एंड बिलासपुर इन 1861, दुर्ग इन 1906. रियासत देख लेते हैं. अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको ऐसे याद रखो. 4K 3S 2RC बस. 14 रियासत ऑफ छत्तीसगढ़, 4K 3S 2RC बस. 4K के लिए अपन क्या देखे थे? यहां देख लेते हैं. हाँ, इस मैप में देख लो 4K. चलो, 14 रियासत. तो आपने क्या देखा था आज ही? प्रेजेंट का जो आप छत्तीसगढ़ देखोगे, प्रेजेंट का छत्तीसगढ़, ये ज़्यादा ठीक है. यहां देख लेते हैं. 4K मतलब कोड बनाया है, मतलब 4 रियासत के नाम के से होंगे, है ना. चलो यहाँ से शुरू करते हैं. इसका एक हिंट याद रखना कि प्रिंसली स्टेट्स स्टार्टिंग विथ के यू विल फाइंड हियर ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़, प्रेजेंट छत्तीसगढ़. ये याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होगा. चलो, ये पहला कोरिया यहाँ आ गया, पहला रियासत हो गया के से. नीचे आओ, कोई के से जैसे ही मिले मार दो, कवर्धा. ये भी हो गया. दूसरा रियासत राजनांदगांव में, ये एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, एक के डिस्ट्रिक्ट नहीं है आज, बट स्टिल इज अ प्लेस इन राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट. खैर आ गया.
यहाँ है खैरागढ़, खैरागढ़। ये तीसरा क्या हो गया? इधर देखो, इधर तीसरा क्या हो गया? अब नीचे आप बॉर्डर्स पे आओ, और के कहाँ मिलेगा? ये कांके। तो 4K में यहाँ कोई कंफ्यूजन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कोरिया, देन कवर्धा, देन खैरागढ़, देन कांके। 4K हो गया। 3S, और 3S के लिए याद रखना कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमें एक ट्रायंगल बनाना है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एक ट्रायंगल बनाएंगे, 3S हो जाएगा। सरगुजा, फिर ये देखो ये ट्रायंगल बनेगा, ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर रायगढ़ में एक तहसील था सारंगगढ़, सारंगगढ़, और इस जांजगीर चांपा से अभी एक बाइफरकेट होकर एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा, वो है शक्ति। तो ट्रायंगल बन रहा है 3S, सरगुजा, शक्ति, सारंग, सरगुजा, शक्ति, सारंग, 3S हो गए। अब 2RC में आते हैं, मीन्स टू प्रिंसली स्टेट्स स्टार्टिंग विद R एंड 2 प्रिंसली स्टेट्स स्टार्टिंग विद C। अब R के लिए याद रखना कि एकदम एक्सट्रीम में होंगे, एक वेस्टर्न में हो, एक R से होगा और एक ईस्टर्न पार्ट में होगा। वेस्टर्न में एक R से देखो क्या दिख रहा है आपको? R से राजनांदगांव, ये दिख रहा है राजनांदगांव, और एकदम एक्सट्रीम ईस्टर्न में आपको R से दिखेगा रायगढ़। तो ये 2R हो गया। देन 2C के लिए आएंगे तो 2C देख लो, एक चांग बखार, यहाँ पर चांग बखार हिल्स है, असल में चांग बखार प्लेस भी है, और कैमूर माउंटेन रेंजेस, कैमूर माउंटेन सीरीज में वहाँ पर एक पीक है, उसका नाम है चांग बखार देवगढ़ माउंटेन्स, वो यहाँ मिलेगा, आगे देखोगे आप। ठीक है, चांग बखार, ऐसे तो कोरिया बोलता है, लेकिन आफ्टर व्हेन 32 डिस्ट्रिक्ट्स विल बी इन ऑपरेशन आफ्टर द इट इज़ पब्लिश्ड इन गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, तो क्या बन जाएगा? एक डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा यहाँ पर, क्या? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, तो ये उसमें चला जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि चांग बखार रीजन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप क्या बोलोगे? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आएगा ये। ठीक है, अच्छा, एक C तो ये हो गया। अब इसी वेस्टर्न में इसी लाइंस पे आते जाओ, और एक C आपको फिर यहाँ मिलेगा छुई खदान, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? राजनांदगांव। इसमें भी वो अमरगढ़ चौकी नहीं आएगा? नहीं आएगा, वो राजनांदगांव में ही है। छुई खदान राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। ये हो गया 2C। अब आते हैं बज से, ये पूरा बस्तर था ना, ये पूरा बस्तर था, ये बस्तर प्रिंसली स्टेट था, बस्तर। फिर उधर आ जाओ, यहाँ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पड़ेगा आपका उदयपुर, और ये जशपुर। ठीक है, तो 14 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ रीजन। 4K, कोरिया, कवर्धा, खैरागढ़, कांके। 3S, a triangle in the north eastern part of Chhattisgarh, Sarguja, Shakti, Sarangarh. Then 2R extreme west Rajnathgaon, extreme east Raigad. 2C on the western borders of Chhattisgarh, ऊपर से ही चांग बखार and then छुई खदान in Rajnathgaon district. Then बस्तर रियासत, ऊपर जाओ सरगुजा में उदयपुर रियासत और जशपुर रियासत। इधर 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। अब देखो क्या हुआ कि दिस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कौन सा पार्ट था? छत्तीसगढ़ साउथ ईस्टर्न पार्ट, मध्य प्रदेश का साउथ ईस्टर्न पार्ट। एक बार देख लो, आई कैसे हो रहा है? वायरस आ गया क्या इसमें मोबाइल की तरफ? मोबाइल में नहीं आता? नहीं, मैं खाली वाली किया, मैं तो सोचा कि अब स्विफ्ट चलेगा, मैं खाली किया हूँ कल इसको। ये
चलो इसी को देख लो, ये मध्य प्रदेश था। ये देखो ये बिफोर 2000 दिस वाज द मैप ऑफ मध्य प्रदेश। सो क्या हुआ, यहाँ के पॉलिटिशियंस, जब मध्य प्रदेश असेंबली तो थी, है ना, और मध्य प्रदेश आपको पता है कि मध्य प्रदेश स्टेट कब बन गया, 1 नवंबर 1956, है ना, फजल अली कमीशन। And by following the recommendations of Fazal Ali Commission, that is State Reorganization Commission, that was established in 1953. And before Fazal Ali, many attempts were made by central government, है ना, SK Dhar Commission was made, then JVP committee was made, but all they rejected the language as the basis of reorganization of states in India. Finally, in 1953, after the death of Potti Sri Ramalu, है ना, Potti Sri Ramalu sat on a hunger strike, and on the very 56th day of hunger strike निपट गया, है ना, निपट गया. So because of his sacrifice for Telugu speaking regions, आनंद फानंद में riots होने लगे, and central government created a first state of India on the linguistic basis, that is Andhra Pradesh. Then others बाकी लोग चुप कैसे होने वाले थे, और प्रोटेस्ट होने लगे, प्लीज़ अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग स्टेट बनाओ. तो देन फाइनली इन आफ्टर दिस प्रेशर ऑफ द डेथ विच वाज क्रिएटेड बाय द डेथ ऑफ श्री रामुलु in 1953, central government appointed 3-member commissions, State Reorganization Commission, which was headed by Fazal Ali. Other members were Hidernath Kunjuru and K.M. Panikar. So Fazal Ali Commission submitted its report in 1955 and this commission accepted, okay, states in India can be reorganized on linguistic basis, but it, on the other hand, it rejected the theory of one language one state theory of one language one state. बोला कर सकते हो, लेकिन एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट, ऐसा नहीं करना, बिकॉज इट विल बी अ वेरी डेंजर टू द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. हुआ ये. सो ऑन द रिकमेंडेशन of Fazal Ali Commission only, in 1956 states in India were reorganized, and how many states were created? 14 states and 6 UTs, and amongst those 14 states, one state was Madhya Pradesh. Madhya Pradesh came into existence in the year on 1st of November 1956. So since 1956 Chhattisgarh became part of Madhya Pradesh till 2000. सो अब 1956 में 1st of November 1956 में मध्य प्रदेश बन गया, एंड छत्तीसगढ़ बिकेम पार्ट ऑफ दिस मध्य प्रदेश, एंड इट रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ टिल 1st of November 2000. अब वहाँ पहुँच गए. अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ से मैनी MLAs फ्रॉम दिस रीजन, क्योंकि मध्य प्रदेश के भी इलेक्शंस होते होंगे, तो MLAs यहाँ से भी, तो इस रीजन से भी खड़े होते होंगे. सो MLAs फ्रॉम दिस रीजन दे स्टार्टेड देयर कैंपेनिंग फॉर हैविंग अ सेपरेट स्टेट आउट ऑफ मध्य प्रदेश. द रीज़न बीइंग, ये रीजन जो है ये मिनरल रिच रीजन रहा, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वो यहाँ से बहुत तगड़े रेवेन्यूज़ यहीं से कमा रही थी, लेकिन इस रीजन को डेवलपमेंट नहीं कर रही थी. ये अब भी जंगल और पिछड़ा हुआ था. तो MLAs यहाँ के उन्होंने मांग किया कि वी वांट अ सेपरेट स्टेट प्लीज़. तो ये बहुत सारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस हुए, वो हम देखेंगे हिस्ट्री में. लेकिन फाइनली मध्य प्रदेश असेंबली में एक रेजोल्यूशन सीकिंग दिस बाइफर्केशन ऑफ दिस साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ये कौन सा पार्ट है? साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. रेजोल्यूशन पास किया, मध्य प्रदेश असेंबली ने उसको एक्सेप्टेंस दे दिया. ओके ठीक है, छत्तीसगढ़ एक सेपरेट स्टेट मध्य प्रदेश से अलग होकर बन सकता है. लेकिन यू ऑलरेडी नो, फॉर द क्रिएशन ऑफ एनी स्टेट, एन असेंबली ऑफ एनी स्टेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज हैविंग एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, एक्सक्लूसिव पावर under Article 2 and 3 for the admission of a new state
and for the establishment of a new state or the formation of a new state. तो अभी पार्लियामेंट करेगा तभी कुछ होना है. LK आडवाणी द देन होम मिनिस्टर, उस समय किसकी सरकार थी? बीजेपी की गवर्नमेंट थी एट द सेंट्रल लेवल, एंड अटल जी वॉज द PM एंड LK आडवाणी वॉज द होम मिनिस्टर. So LK Advani, the home minister, he prepared a Madhya Pradesh reorganization bill 2000 for this purpose. He introduced it in Lok Sabha on 25th of August 2000. सब कुछ 2000 में हो गया है ना. 25th of August वहाँ इंट्रोड्यूस किया, पास हो गया. फिर वहाँ से राज्यसभा में गया. 31st of August में राज्यसभा ने पास कर दिया, बट विथ अमेंडमेंट्स. अरे यार, फिर मैं वहाँ चला गया. छोड़, वो वहाँ देखेंगे. हाँ, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था मैं, लेकिन बात में वहीं चला गया. चलो, ये हुआ. तो फर्स्ट ऑफ क्या हुआ कि फाइनली ऑन 28th of August प्रेसिडेंट गेव हिज एसेंट टू द बिल, गेव हिज 25th, कई जगह 25th मिलेगा, कई जगह आपको 27 भी मिलेगा. वो वहाँ जब आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको. So on 25th of August 2000, President of India gave his assent to this bill, and this bill became an act. और act बन गया क्या? MP State Reorganization Act 2000. So Chhattisgarh was created by the virtue of which act? यही आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा. तो कौन से एक्ट से छत्तीसगढ़ बना? मध्य प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000. और कब बना? 1st of November 2000. उस बिल में लिखा हुआ था कि 1st of November को पापा स्टेट बने थे, मतलब मध्य प्रदेश, है ना, हमारे पापा मध्य प्रदेश. हाँ, 1st of November 1956. सो ऑन द वेरी सेम डे 1st of November 2000 को हम भी अपना जन्मदिन मनाएं. ये हुआ 1st of November 2000 को छत्तीसगढ़ स्टेट बन गया, 26th स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये 26 स्टेट बन गया. और इन द वेरी सेम ईयर एक्चुअली उत्तराखंड एंड झारखंड दे आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस एज 27th एंड 28th स्टेट ऑफ इंडिया. सेम, बस डेट का अंतर है. 1st 9 15, बस यही अंतर है. 1st नवंबर को छत्तीसगढ़ 26 बन गया, 9 को उत्तराखंड बना और 15 को झारखंड बना. ठीक है, चलो अब ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हेन छत्तीसगढ़ बिकेम अ सेपरेट स्टेट ऑन द डे 1st November 2000, ये छत्तीसगढ़ जब कार्व्ड किया गया मध्य प्रदेश से, इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश ओनली. द पेरेंट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज मध्य प्रदेश. हाउ मेनी, तो छत्तीसगढ़ बना तो हाउ, कितने डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर, मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर छत्तीसगढ़ बना, कितने डिविजन्स को लेकर छत्तीसगढ़ बना, कितने तहसील थे उसमें, कितने विकास खंड थे, दैट इज ब्लॉक्स. इसको विकास खंड, डेवलपमेंट ब्लॉक्स भी बोलते हैं ना, डेवलपमेंट ब्लॉक, विकास खंड. तो क्या था, इनके स्टेटस क्या था? सो ऑन 1st of November 2000 when Chhattisgarh came into existence, this Chhattisgarh region comprised of how many divisions? 3. और ये डिविजन्स कौन कौन से थे? रायपुर, बिलासपुर, रायपुर नहीं था, बिलासपुर, रायपुर एंड बस्तर. रायपुर, बिलासपुर एंड बस्तर, ये 3 डिविजन्स से. बस्तर, और इन 3 डिविजन्स में कितने मिलाकर कितने डिस्ट्रिक्ट से? 16. कितने तहसील थे ऑल ओवर छत्तीसगढ़? 96. और कितने डेवलपमेंट ब्लॉक्स थे? 146. ठीक है, ये ऐसा ये आंकड़े याद होने चाहिए आपको, है ना. एट द टाइम ऑफ छत्तीसगढ़ क्रिएशन, हाउ दिस छत्तीसगढ़ कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी डिविजन्स? 3. व्हाट वर दोज डिविजन्स? बिलासपुर, पहले ऊपर से टॉप से शुरू करो, बिलासपुर, देन रायपुर एंड देन बस्तर. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर? 16. अभी याद कर लोगे, अभी वो 16 कौन कौन से आप जान जाओगे. उसके बाद हाउ मेनी तहसील्स वर देयर? 96. हाउ मेनी डेवलपमेंट ब्लॉक्स वर देयर? 146. अब आते हैं उस कहानी पर. कहाँ चल रहे थे अपन? 1906 तक बना दिया था ना. ये तो देख लिए, बात कर लिए इसके बारे में. हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली कमीशन, राजनांदगांव. अब देखो, अरे 1948 कहाँ है?
आओ, अब ये तो जान गए ना आप, इंडियाज इंडिपेंडेंस के समय क्या पोजीशन थी। 3 डिस्ट्रिक्ट थे, 14 प्रिंसली स्टेट थे। जस्ट नेक्स्ट ईयर आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस 1948, अब जो भी डिस्ट्रिक्ट्स बनने वाले हैं वो इंडिपेंडेंट इंडिया में बनने वाले हैं, है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया में बनने वाले हैं। और इसका कोड क्या है, सराब, ऐसे पढ़ लो, ऐसे लगेगा सू लेकिन सराब। एस सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, आर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, बी बस्तर डिस्ट्रिक्ट। इन 1948 इन दिस रीजन, मतलब इन दिस रीजन अभी भी सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स वे क्रिएटेड, सराब, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। तो अब तक कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, 1861 रायपुर बिलासपुर, 1906 दुर्ग, ये इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले बन चुके हैं। नाउ जस्ट आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1948 3 डिस्ट्रिक्ट्स वे क्रिएटेड इन दिस रीजन, सराब, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। ये 1948 की बात हो गई। फिर आपको जानते हो 1956 में मध्य प्रदेश बन गया। दिस छत्तीसगढ़ रीजन बिकेम अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसका मतलब अब जो भी डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे वो मध्य प्रदेश में बनेंगे, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब जो भी डिस्ट्रिक्ट बनेंगे मध्य प्रदेश में बनेंगे। तो इंडिपेंडेंस से पहले कितने डिस्ट्रिक्ट बन चुके थे, 3। और बिफोर छत्तीसगढ़ बिकेम अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश कितने डिस्ट्रिक्ट बन चुके थे, 6 बन चुके थे ना, है ना। आपके 3 तो सेंट्रल प्रोविंसेस में बन गए, फिर 3 ये कहाँ बने, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार में बने। और अब जो भी बनेगा इसके बाद वो कहाँ बनेगा, मध्य प्रदेश में बनेगा। सो 1973 सर डिवीजन एक ही चल रहा था ना, मतलब नहीं, डिविजन्स बन चुका। 1956 में दूसरा बनेगा, जब विद द क्रिएशन ऑफ मध्य प्रदेश बिलासपुर विल बिकम अ डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। वो है आपके उसमें है, बाद में आएगा। तो ये याद रख लो। चलो डिवीजन भी अगर आपको याद करना है तो सोच लो इंडिपेंडेंस तक, और ये भी सोच लो कि टिल मध्य प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज अ स्टेट, केवल एक ही डिवीजन था इस रीजन में, रायपुर। विद द क्रिएशन ऑफ मध्य प्रदेश एज अ स्टेट, बिलासपुर वॉज ऑल्सो मेड अ डिवीजन इन 1956, ठीक है। वो अलग से आएगा तो मैं इसको जोड़ देता। 1970 राजनांदगांव बिकेम अ डिस्ट्रिक्ट बाइफर्केटेड फ्रॉम दुर्ग, रायपुर से दुर्ग बना, और दुर्ग से अब अगला डिस्ट्रिक्ट बनेगा 1973 में राजनांदगांव, ठीक है। तो अब कितने डिस्ट्रिक्ट्स अब तक आपने देख लिए, 7 देख लिया। सेंट्रल प्रोविंसेस में कितने डिस्ट्रिक्ट्स बन गए, 3। कौन कौन से, 1861 रायपुर बिलासपुर, देन 1906 में दुर्ग, ये सेंट्रल प्रोविंसेस में। अब नेक्स्ट 3 बनेंगे कहाँ, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार में। और इन द ईयर 1948 शराब, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर हो गए। अब छत्तीसगढ़ विल बिकम अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन 1956। अब जो भी डिस्ट्रिक्ट बनेंगे मध्य प्रदेश में बनेंगे। इन द ईयर 1973 राजनांदगांव बिकेम अ डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 1973 के बाद सीधे हम आएंगे 1998 में। और इन 1998 9 डिस्ट्रिक्ट्स वे क्रिएटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मीन्स आउट ऑफ दिस रीजन ना, ये रीजन जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ बनने वाला, यहाँ 9 डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे, ठीक है। ये देखो, इसको यहाँ से देखोगे तो याद नहीं रहेगा। अब इसको चले जाओ मैप में देखने के लिए। ये 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जब बना छत्तीसगढ़। ये 1 नवंबर 2000 की स्थिति है। 1 नवंबर 2000 ये छत्तीसगढ़ है, और ये 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। वो आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ 1998 में क्या हुआ। देखो कैसे, अब वो 1998 में जो बनेंगे 9 तभी तो 16 होगा, क्योंकि अभी तक तो आपने कितने डिस्ट्रिक्ट, 7 देखे आपने।
7 कौन कौन से देख लिया आपने? देखो ये देख लिया, रायपुर देख लिया आपने, दुर्ग देख लिया आपने, बिलासपुर देख लिया आपने, सरगुजा देख लिया आपने, बस्तर देख लिया आपने, रायगढ़ आपने देख लिया और राजनांदगांव। यही देखा ना आपने अब तक। अब मतलब इनके अलावा 9 डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे। अब वो देखो कैसे बनेंगे। आप ऐसे ही याद रखना कि अभी एट प्रेजेंट का ऊपर 2 कहाँ बनेंगे? यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, है ना, 2 यहाँ बनेंगे और फिर 2 बनेंगे यहाँ बिलासपुर में, मैं समझा दूंगा अभी। 2 यहाँ बनेंगे, ठीक, और यहाँ बनेगा एक बनेगा दुर्ग डिवीजन में 1, और इधर बनेगा 2 और इधर बनेगा 2। मतलब प्रेजेंट के आप जानते हो एट प्रेजेंट हाउ मेनी डिवीजन छत्तीसगढ़ इज हैविंग? 5। ऊपर सरगुजा, उसके नीचे बिलासपुर डिवीजन, देन राइट साइड दुर्ग डिवीजन, देन दिस इज रायपुर डिवीजन एंड ऑन द साउथ वी हैव बस्तर डिवीजन। तो ये 2 ऐसे लिखने का मतलब है, आप डिवीजन से याद कर लो। ऊपर सरगुजा डिवीजन में 2 डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे 1998 में, बिलासपुर में 2 बनेंगे, दुर्ग में 1 बनेगा, रायपुर में 2 बनेगा और 2 बनेगा, ये हो गए 9। चलो ऐसे याद रहेगा। ऊपर से शुरू करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर सरगुजा बन चुका है और रायगढ़ बन चुका है ना। अब क्या होगा? सरगुजा से डिवाइड होके एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा कोरिया। ये हो गया एक कोरिया, ठीक है। पेरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरिया इज कवर्धा। दुर्ग नहीं बना है, दुर्ग नहीं लिखा है। अरे वो दिखेगा, वो आगे नोट्स में है, समझ जाओगे। पिछला क्लास नहीं किया क्या? अरे रुको इधर आओ। वो 2008 में बना है। नहीं सर, वो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट किसका पेरेंट? नांदगांव का? कवर्धा का। कवर्धा दुर्ग से नहीं बना है। रुक इधर आ जाएगा अभी आ रहा है। इधर आओ। सरगुजा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, इससे डिवाइड होके कोरिया एक डिस्ट्रिक्ट बना, और क्या बनेगा? रायगढ़ से बनेगा जशपुर नगर नहीं होगा ना, ये क्या है अभी? जशपुर है। एक्चुअली जशपुर नगर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जशपुर, ठीक है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट ऊपर हो गए सरगुजा डिवीजन में। एट प्रेजेंट का सरगुजा डिवीजन में 2 डिस्ट्रिक्ट बन गए। आउट ऑफ सरगुजा कोरिया इवॉल्व एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ रायगढ़ जशपुर इवॉल्व एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट। ये 2 हो गए। अब नीचे आते हैं, बिलासपुर में आते हैं, यहाँ भी 2 हुआ। कोरबा एंड जांजगीर चांपा। ये देखो कोरबा एंड जांजगीर चांपा, ये किससे बने? बिलासपुर से बने। ये दोनों बिलासपुर से बने। 4 हो गए। दुर्ग में आते हैं। ये जो बिलासपुर है ना, इसका कुछ हिस्सा ये बिलासपुर का हिस्सा था और राजनांदगांव का नॉर्थ ये कुछ हिस्सा था। इन दोनों को मिलाकर एक नया स्टेट बनाए ये लोग, और क्या बना? ये कवर्धा, एक नया डिस्ट्रिक्ट बना कवर्धा। और कहाँ गया? कवर्धा कवर्धा। तो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कवर्धा, इनके 2 पापा हैं, राजनांदगांव एंड बिलासपुर, ठीक है। राजनांदगांव एंड बिलासपुर, सदर्न पोर्शन ऑफ बिलासपुर एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजनांदगांव, दे वर मिंगल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड कवर्धा। ये 5 हो गए। अब आते हैं अपन रायपुर में। पूरा रायपुर ही था एक डिस्ट्रिक्ट बड़ा सा। अब यहाँ से महासमुंद एंड धमतरी, ये है धमतरी, ये महासमुंद एंड धमतरी, ये 2 डिस्ट्रिक्ट बन गए आउट ऑफ रायपुर। और नीचे ये पूरा बहुत बड़ा बस्तर था, ये पूरा बस्तर है इतना बड़ा। और इस समय आपको मैं बता दूं, बस्तर वॉज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एरिया वाइज। हाँ, इतना बड़ा था ये, लेकिन अब नहीं होने वाला है। अब क्या होगा? 1998 में बस्तर विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ये southern part of Bastar will become Dantewada and northern part of Bastar will become Kanke.
So in 1998, how many districts will be created? 9. 2 at the top. कोरिया फ्रॉम सरगुजा, जसपुर फ्रॉम रायगढ़, नीचे आ जाते हैं कोरबा एंड जांजगीर चांपा फ्रॉम बिलासपुर, दुर्ग में आ जाते हैं कवर्धा फ्रॉम राजनांदगांव एंड बिलासपुर, रायपुर में आ जाते हैं महासमुंद एंड धमतरी फ्रॉम रायपुर, महासमुंद एंड धमतरी फ्रॉम रायपुर, बस्तर में आ जाते हैं कांकेर एंड दंतेवाड़ा फ्रॉम upper part of Bastar will become Kanker and southern part of Bastar will become Dantewada. ये हो गए 9 डिस्ट्रिक्ट्स। तो अब कितने हो गए? 16 हो गए, 16 हो गए। अब इसी 16 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ छत्तीसगढ़ बन जाएगा 1 नवंबर 2000 को। अब जो भी डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे, अब अभी कितने बने? 9 बने। मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट्स बने? 9 बने, है ना। अब जो भी डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे इसके बाद वो छत्तीसगढ़ स्टेट में बनेंगे, ठीक है। खत्म ही कर दूं मैं इसको। इससे पहले 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ आ गया। 2003 में 3 डिस्ट्रिक्ट्स के नेम्स बदले गए, नाम बदले गए, है ना, नाम बदले गए। और वो 3 डिस्ट्रिक्ट देखो, कवर्धा बिकेम कबीरधाम, है ना। 2003 से कबीरधाम है वो, उससे पहले कवर्धा ही था। 2003 में कवर्धा बिकेम कबीरधाम, कांकेर बिकेम नॉर्थ बस्तर कांकेर एंड दंतेवाड़ा बिकेम साउथ बस्तर दंतेवाड़ा। अब अगर आपसे पूछे कि अभी डिस्ट्रिक्ट कांकेर है कि नॉर्थ बस्तर कांकेर, आप क्या बोलोगे? नॉर्थ बस्तर कांकेर अभी डिस्ट्रिक्ट है। ऑफिशियली नॉर्थ बस्तर कांकेर इज द डिस्ट्रिक्ट। क्या पता है, ऐसे बहुत सारा चीज़ हम करते हैं जो टाइम वेस्ट करने के लिए होता है ना। तुमको क्या लगता है? तुमको ये बताया गया कि छत्तीसगढ़ उपेक्षित हो रहा था, यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इसलिए मांग कर रहे थे वो लोग सेपरेट छत्तीसगढ़ का। ना, सेपरेट छत्तीसगढ़ बनेगा, यहाँ भी फिर मंत्री बनने का मौका मिलेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, खाएंगे सब मिलके, और खा गए। ये कहने वाली बात है कि भैया मध्य प्रदेश जो है यहाँ से मिनरल एक्सप्लॉइट कर रहा है लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, हम विकास चाहते हैं अब इस क्षेत्र का, इसलिए सेपरेट छत्तीसगढ़ बनाओ, मैं सीएम बनूंगा, है ना, मेरा साला डिप्टी सीएम बनेगा, मेरा वो दोस्त जो है होम मिनिस्टर बनेगा, हम इसका डेवलपमेंट करेंगे, ये कहने के लिए। रियलिटी ये है कि नया स्टेट बनेगा, बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत पैसा मिलेगा उस स्टेट के लिए, और सब मिल बांट के खा लेंगे। हाँ, छोड़ो इसको। 2003 में कवर्धा बिकेम कबीरधाम, कांकेर बिकेम नॉर्थ बस्तर कांकेर एंड दंतेवाड़ा बिकेम साउथ बस्तर दंतेवाड़ा। अब सीधे आएंगे 1 मई 2007। अब जो डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है वो छत्तीसगढ़ स्टेट में बनेगा। तो पहले 2 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ स्टेट में बनने वाले कौन कौन से हैं? नारायणपुर एंड बीजापुर। बस्तर एक बार और स्प्लिट होगा, और अपर पार्ट में इधर पार्ट में, बस्तर के इधर पार्ट में ये बन जाएगा नारायणपुर, और दंतेवाड़ा का वेस्टर्न पार्ट बन जाएगा, ये देखो यहाँ देखो। अभी क्या था, पहले कांकेर और दंतेवाड़ा बस बना, तो दंतेवाड़ा ये इतना बड़ा था ना, ये दंतेवाड़ा और ये कांकेर और ये पूरा बस्तर, ठीक है, ये पूरा बस्तर है, ये है। अभी क्या किया इसने कि बस्तर से स्प्लिट हो गया, अब नारायणपुर बनेगा। कौन सा पार्ट? ये देख लो, नॉर्थ वेस्टर्न बोल लो इसको आप, है ना, और दंतेवाड़ा का वेस्टर्न पार्ट बनेगा बीजापुर। ये तो 1 मई 2007, ठीक है, 18 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में। कैसे? नारायणपुर फ्रॉम बस्तर एंड बीजापुर फ्रॉम दंतेवाड़ा। अब हो गए 2007, 1 मई 2007 में छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 18। 1 जनवरी 2012 में
फिर से 9 डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे, लेकिन अब की बार छत्तीसगढ़ स्टेट में बनेंगे। पहले जो 9 बने थे वो मध्य प्रदेश स्टेट में बने थे, अब ये 9 बनेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट में। अब देख लो, आ जा मैप, आई ये तो चलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं, ये इतना फट कैसे गया? छोड़ो, कोई बात नहीं। अब देखो, अब 9 डिस्ट्रिक्ट्स कैसे काउंट करेंगे। अब तक क्या क्या डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं एक बार रिवाइंड कर लो। 1861 रायपुर एंड बिलासपुर, 1906 दुर्ग, इसके बाद सीधे 1948 सराब, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। इसके बाद सीधे हम कहाँ पहुंचेंगे? 1973 राजनांदगांव आउट ऑफ। अच्छा, जब सराब बोला मैं, सरगुजा, रायगढ़ एंड बस्तर, तो वहाँ मैं पेरेंट डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि ट्रांसफर हो क्या है ना, दो दे वर ऑलरेडी रियासत, दे वर प्रिंसली स्टेट, और उनको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट बना दिया, तो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट की बात हुई नहीं। 14 रियासत में थे ना ये लोग, इसलिए उसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट है नहीं। ठीक, फिर सीधे 1973 में क्या बना? राजनांदगांव। 1973 के बाद सीधे कहाँ पहुँचेंगे? 1998 9 डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड। कौन कौन से? ऊपर 2, कोरिया एंड जशपुर। कोरिया फ्रॉम सरगुजा, जशपुर फ्रॉम रायगढ़। नीचे आते हैं 2, कोरबा एंड जांजगीर चांपा फ्रॉम बिलासपुर। दुर्ग में आते हैं, दुर्ग में प्रेजेंट दुर्ग डिवीजन का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कवर्धा बना, कवर्धा फ्रॉम राजनांदगांव, बिलासपुर। रायपुर में आ जाते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? महासमुंद, धमतरी आउट ऑफ रायपुर। नीचे आ गए, नीचे 2, कांकेर एंड दंतेवाड़ा आउट ऑफ बस्तर। ये 1998 हो गया। 1998 के बाद 2003 में जाते हैं, 3 नेम चेंज होंगे। कवर्धा का कबीरधाम, कांकेर का नॉर्थ बस्तर कांकेर, दंतेवाड़ा का साउथ बस्तर दंतेवाड़ा। इसके बाद कहाँ पहुँचेंगे? 1 मई 2007 2 बनेंगे, नारायणपुर एंड बीजापुर। नारायणपुर आउट ऑफ बस्तर, बीजापुर आउट ऑफ दंतेवाड़ा। अब हम पहुँच गए 1 जनवरी 2012। अब यहाँ भी 9 डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे। देखो ऊपर देखो, सरगुजा फिर से स्प्लिट होगा, मतलब ऊपर 2 कर लेता हूँ, है ना। बिलासपुर में क्या कर लेता हूँ? बिलासपुर में भी आपका 1 करूंगा, केवल बिलासपुर में 1, रायपुर में 2, दुर्ग में 2, और फिर से यहाँ 2, फिर से यहाँ 2 करूंगा। 1998 में दुर्ग में केवल 1 था, और लेकिन 2012 में बिलासपुर में केवल 1। चलो ऐसे पकड़ लो इसको, चलो ऊपर, बस 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 बस, चलो ऊपर चलते हैं। अब सरगुजा से 2 डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, सूरजपुर एंड बलराम। ये देखो, ये एक बनेगा सूरजपुर और ये एक बलरामपुर बनेगा, 2 यहाँ हो गए। बिलासपुर में देखो, बिलासपुर से बनेगा मुंगेली, बिलासपुर डिवाइड होगा और ये मुंगेली बन गया। ठीक, यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, मुंगेली ये है, दिस इज सूरजपुर एंड दिस इज बलरामपुर। ठीक, अब आ जाते हैं प्रेजेंट दुर्ग डिवीजन में, यहाँ 2 बनेंगे। अब ये देखो, ये लंबा सा ना दुर्ग था, ये पूरा लंबा सा दुर्ग था। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दुर्ग विल बिकम बेमेतरा, एंड सदर्न पार्ट ऑफ दुर्ग विल बिकम बालोद। तो दुर्ग से 2 डिस्ट्रिक्ट्स बन गए, बेमेतरा एंड बालोद। रायपुर में आ जाते हैं, ये देखो, अब फिर से रायपुर स्प्लिट होगा ना, रायपुर ही स्प्लिट होगा। दोनों टाइम 1998 में भी रायपुर स्प्लिट हुआ था, अब भी रायपुर स्प्लिट होगा। रायपुर का ऊपर नदन पार्ट देखो, ये बनेगा बलौदा बाजार, ये बनेगा बलौदा बाजार। और ये देखो इधर, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? अगर कभी पूछ ले तो आपको, कौन सा पार्ट? रायपुर का अगर बात करेंगे तो ये बन जाएगा साउथ ईस्ट। हाँ यार, हाँ, बलौदा बाजार है गरियापुर। तो यहाँ 2 हो गए। और नीचे देखो, अब क्या होगा? फिर बस्तर स्प्लिट होगा, नदन पार्ट बनेगा कोंडागांव, और ये बस्तर का ये ना कहाँ से बनेगा? ये दंतेवाड़ा फिर से स्प्लिट होगा, और ये बनेगा
सुकमा। तो 2012 में 9 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से ऊपर? दंतेवाड़ा कितनी बार टूटा है ऐसा कुछ? अगर ऐसा पूछ भी लिया तो तुम तो बना लोगे ना। हाँ, क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, सेटर की मर्जी। चल मैं बना दूंगा। चलो 1 जनवरी 2012 2 डिस्ट्रिक्ट्स सूरजपुर एंड बलरामपुर आउट ऑफ सरगुजा। नीचे आते हैं बिलासपुर डिवीजन, प्रेजेंट बिलासपुर डिवीजन 1, मुंगेली आउट ऑफ बिलासपुर 2 डिवीजन में आते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स, बेमेतरा एंड बालोद आउट ऑफ दुर्ग रायपुर में आते हैं, बलौदा बाजार एंड दरियाबंद आउट ऑफ रायपुर नीचे आते हैं, कोंडा गांव एंड सुकमा, कोंडा गांव आउट ऑफ बस्तर, सुकमा आउट ऑफ दंतेवाड़ा। अब इनको मिलाकर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए? 27 ना। 10th February 2020 10th February 2020 ये लो यहाँ आ जाओ। ये बना, एक ही डिस्ट्रिक्ट बना 10th February 2020 को, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं है, एक ही है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। एंड दिस डिस्ट्रिक्ट बिकेम 28th डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इन द ईयर 2020, टू बी प्रिसाइज 10th February 2020. Then in the very next year during this lockdown corona period, 15th August 2021, Chief Minister Kaka of Chhattisgarh announced for the creation of 4 new districts. अब ये भी पूछ सकता है, however these 4 districts are not in existence till now. When will they become a district officially? When the details of these 4 districts and the date of their existence will be published in the official gazette of Chhattisgarh government, and it's still now not published. ठीक है, लेकिन जान लो it's proposed. So 4 new proposed districts are, till we will give our prelims हो जाएगा। तो proposed 4 new districts, देखो इधर ये हिस्सा कोरिया से बनेगा, ये हिस्सा क्या ना सर गूगल में सर्च कर रहे हैं ना सर, तो 32 दिखाई है। हाँ, वो अब क्योंकि पता है ना वो हो जाएगा, लेकिन अभी ऑफिशियल गैजेट में नहीं आया है तो गूगल में, लेकिन डेट क्यों नहीं बता रहा? फिर बता। ये है सर फॉलोइंग द क्रिएशन ऑफ, हाँ डेट बता, डेट नहीं वो तो डेट आया ही नहीं, वो कहाँ से आएगा? जो ऑफिशियल गैजेट में आएगा तब तो आएगा डेट। अब ये ऐसी चीज नहीं है कि ये अब होगा नहीं, हो चुका है ये, बस इसका ना फॉर्मेलिटी बाकी है, बस 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 बस। 32 से 36 कर लेंगे तो उतनी बात है। तुमको अच्छा क्या है, अब देखो सुनो सुनो, हाई लेवल पे बोला जाता है वी नीड अ न्यू सेपरेट स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब जब स्टेट के अंदर बोला जाता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस वी नीड न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ना, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बाइफरकेट कर देते हैं। द रियल रीजन बिहाइंड दिस इज पैसा, है ना। पॉलिटिशियंस दे विल बाई ऑल द एग्रीकल्चरल लैंड्स इन वेरी लेस प्राइस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर देंगे, उनकी प्राइस 10 गुना बढ़ जाएगी, फिर वहाँ से हाईवे निकाल देंगे, उसकी प्राइस 100 गुना हो जाएगी, वहाँ मल्टीप्लेक्स बना देंगे, इसकी प्राइस 500 गुना हो जाएगी, फिर उसको प्लॉटिंग करके बेच देंगे। अब ये बता रहा हूँ क्रूड रियलिटी, ठीक है। जागरूक हो जाओ, आगे चल के जब आगे बड़े हो जाओगे ना तब जानते तुम लोग ये समझते, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। चलो छोड़ो उसको, लेकिन हमें लिखना क्या है? हमें ये नहीं लिखना है ना, हमें लिखना है फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ announced for the creation of 4 new districts, है ना। ये लो, this out of Korea a new district will come, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यहाँ ऊपर में इधर आ जाओ, इधर आओगे तो ये देखो जांजगीर चांपा will be bifurcated into 2 parts. This will become जांजगीर चांपा and the
ईस्टर्न पार्ट ऑफ जांजगीर चांपा विल बिकम अ न्यू डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड शक्ति, ये दूसरा, ठीक। एंड हियर बिलाईगढ़, टेकिंग बिलाईगढ़ फ्रॉम बलौदा बाजार, दिस इज बिलाईगढ़ ना, टेकिंग बिलाईगढ़ एंड टेकिंग सारंगगढ़ फ्रॉम द साउथ पार्ट ऑफ रायगढ़, अ न्यू डिस्ट्रिक्ट विल बी क्रिएटेड कॉल्ड सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। बिलाई और बिलाई एक ही बात है, भावनाओं को समझ लेना, आ की मात्रा में कंफ्यूज नहीं होने का। 3 हो गया है ना। फोर्थ न्यू डिस्ट्रिक्ट विल बिकम, यहाँ से कटेगा और ये बनेगा मोहला मानपुर, पूरा साले जो पूरा एक एक तहसील कहानी लिख दी, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। हाँ, पूरा बाप दादा का नाम बता के ऐसे जिला का नाम बोलते बोलते शाम हो जाए। ये दीज आर द 4 न्यू प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। कौन कौन से? 1 मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी लिख दूं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे चिरमिरी कैसे लिखते हैं, चिरमिरी भरतपुर, भरतपुर आउट ऑफ कोरिया, देन शक्ति आउट ऑफ जांजगीर चांपा, देन सारंगगढ़ बिलाईगढ़ आउट ऑफ बलौदा बाजार एंड रायगढ़, इनके भी 2 पापा है ना। और चौथा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी फ्रॉम राजनांदगांव ने 4 बेटे पैदा कर दिए। मोहल्ला देखो 4 बेटे नहीं लग रहा, मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़, इधर 3, इधर 1, इधर 2, ऐसा तहसील को ही वो क्रिएट कर दिया ना। हाँ, मर्ज करके एक डिस्ट्रिक्ट बना दिए। डिटेल्स हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से तहसील इसमें आएंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ तब एक और ये आपका ऑफिशियल गैजेट आ जाए, तारीख और उसके साथ अभी केवल अंदाजे हैं, बता रहा हूँ, ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुआ है। वरना बहुत सारी किताबों ने एज्यूम करके जो अनाउंसमेंट में बोला है उसको बोल दिया, लेकिन भाई जो अनाउंस किया है ज़रूरी थोड़ी हो कि वो फाइनली हो, तो इसलिए मैं वो बता नहीं रहा हूँ, है ना, कि इस डिस्ट्रिक्ट में कौन, तो वो डिस्ट्रिक्ट वो तहसील इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सारे तहसील नहीं रटना है, ये मूर्खों की तरह एक एक तहसील गली मोहल्ला नहीं रटवाऊंगा मैं वो तहसील, जानते हो कितने तहसील हैं? 222 प्रपोज जो वो हो गया वो भी एग्जिस्ट कर जाएगा, 222 तहसील हो जाएंगे, है ना। 177 हुआ था, फिर से नए तहसीलों का अनाउंसमेंट हो गया, 222 हो जाएगा अभी, है ना, और हो गया है शायद, वो आ जाएगा, करंट में अपडेट आ जाएगा 222। अब 222 तहसील बैठ के लोग याद कर रहे हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अरे मूर्खता है, इसको नहीं बोलते स्मार्टनेस। स्मार्टनेस क्या होगा, हम माइंस पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे तो बहुत सारी तहसील तो हम ऐसे ही जान जाएंगे, ठीक। और वो तहसील पढ़ेंगे जो न्यू प्रपोज्ड जो बने हैं 177 के बाद, उसका लोकेशन देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या चेंजेस आए तहसील्स और ब्लॉक्स में वो देखेंगे। फिर देखेंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो बने, एक गौरेला पेंड्रा मारवाही जो बन चुका है, वहाँ कौन कौन सी तहसील्स हैं, और जो 4 न्यू प्रपोज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से तहसील्स वहाँ होंगे। क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, है ना। अब बजाय इसके 222 तहसील रटवा रहा हूँ 2-3 दिन तक, तो वो जादू दिखाने के लिए होता है, काम की चीज़ नहीं होती। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो।